Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग अकोमोडेशन इन कैनेडा. स्टूडेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी अकोमोडेशन, रेंट और हाउसिंग होता है कैनेडा में. एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक. इसके बारे में पूरा डेप्थ में बात करेंगे. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई प्रॉमिस यू टू गिव द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग इन कैनेडा इन दिस वीडियो. इस वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कैनेडा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन ऑन कैंपस वर्सेज ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे. एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट वेबसाइट्स जो स्टूडेंट को अवेल करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट एंड चीपेस्ट रेंट इन देयर इनिशियल फेज. उसके बारे में इन डेप्थ जाएंगे. एंड फाइनली आई विल बी प्रोवाइडिंग विद सम पॉइंटर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर पेइंग योर फर्स्ट रेंट इन कैनेडा और मूविंग टू योर फर्स्ट न्यू हाउस इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. कुछ फैक्टर्स होते हैं, बहुत स्कैम्स होते हैं कैनेडा में, तो वो सारे के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे. तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Alright, coming to on-campus versus off-campus housing in Canada for international students. अब on-campus मतलब होता है within the university, within the college आपका कुछ places होता है. University authorities ने कुछ houses, कुछ buildings बनाए रखा है and they are willing to rent them out to international students who are coming to their particular university or to their particular college as international students. जिनको admission हो गया, जिनका admission मिल गया successfully and they are willing to live within the campus, then they are providing on-campus housing to those particular students. And trust me on this guys, unless you're Ambani's, it's really tough to afford it. Yes, you got it right. They're super costly and it's like dormitory or hostel where you pay to the university or college you're a student in and they allow you to live within their campus in their on-campus housing, right? But on-campus housing में बहुत सारे types of rooms होते हैं like suites, normal, shared, private. But trust me on this guys, they are anyway super costly. And on campus में बहुत सारे meal plan भी होते हैं like normal, regular, medium, large, extra large depending on your capacity to eat. And meal plan and room के हिसाब से आपका budget होगा and they'll take you the fees per month. When you pay it, they'll allow you to live there. This is on-campus housing. Now, should you take on-campus housing or not? Definitely not. It's not recommended. Firstly, if you're in a budget, you won't be able to afford it because बहुत ज़्यादा cost आ जाता है. And unless you have a good financial background and your parents are willing to support you, it's really impossible to afford on-campus housing. First ये disadvantage आता है. Number two, restrictions के अंदर आपको जीना होगा. High restrictions because you have to go out in a fixed time, come in a fixed time because you are living within the campus under the security surveillance of the university or college you are in, right? Third, less exposure. In the initial phase, it's really important to go out and mingle with the culture, with the Canadian culture, talk to new people, talk to settled Punjabi people, to build your network, to build your exposure, right? Within the campus you just get your fellow mates, batchmates के साथ आपका बात होगा and exposure generally कम हो जाता है. And finally, why to live under limitations, right? On campus gives you limitations. अगर आप बजट में हो तब तो definitely you can afford it. अगर आप बजट पर नहीं भी हो, you have a good financial background, whatever the case is, just go in downtown Toronto, like rent out a lavish condo and live your life with the freedom, right? Make your own rules. क्यों within the campus रहना है? It's anyway not recommended from my side. मुझे direction देना मेरा काम है. Now the decision is up to you. That's it for on campus housing. Now let's talk about off-campus housing. Off-campus मतलब definitely out of your campus. Any property, anything that you can lease out or rent out of your campus is known as off-campus housing or off-campus accommodation in Canada. तो डेफिनेटली ऑफ कैंपस खोजने का डिफरेंट ट्रिक्स है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट स्ट्रैटेजीज बिकॉज आई हैव सीन वीडियोज ऑफ अदर यूट्यूबर्स कुछ भी बोल देते हैं एंड डेफिनेटली व्हेन यू कम इन कैनेडा दो स्ट्रैटेजीज, दोज थिंग्स दैट दे हैव सेड डोंट रियली वर्क आउट. सो मैंने रिसर्च किया है, मैं बेस्ट वेज ही बताऊंगा जिससे कि आपको 24 to 48 आवर्स में आपका अकोमोडेशन मिल जाए. तो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पॉइंट इज social media groups, telegram groups, instagram groups or whatsapp groups, whatever university or college student का जो group होगा, join that and in that you'll be getting definitely a lot of leads because उसमें सारे upcoming international students हो गए या फिर जो students already आ चुके हैं कैनेडा में and definitely vacancies के बारे में उधर बात हो गई. You can just type there कि I need accommodation, I'm coming in this date. मैं recommend करूँगा कि इंडिया से डिपार्ट होने के पहले ही आप मैसेज कर दीजिए and try to communicate with the group members, group admins और आपको मैसेज दिख ही जाएगा. People will be asking, people will be needing accommodation because that's definitely a priority, right? तो आपको ऐसे ग्रुप्स में एंटर होना है and definitely communicate with them so you get different leads. एक लीड के ऊपर डिपेंड मत होइए because you never know, you can just lose contact with them or they might ditch you. तो make variety of contacts,
जो सेटल है कनाडा में, जो ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के साथ बात करो, एंड दैट इज़ हाउ यू यूटिलाइज द मोस्ट आउट ऑफ दिस ग्रुप्स. Social media groups is the first point. Moving on to the second pointer of our list is college or university bulletin boards. Now things are online, but definitely mid September या फिर अक्टूबर से खुल जाएगा कनाडा में. Physical classrooms will be available. So definitely visit your campus and look up to their boards. उसमें आपको pamphlets and posters बहुत सारे दिखेंगे by students और even the landlords. वो लोग दिए रहते हैं for advertisement purpose. I will be finding कि I need roommates for this purpose or shared accommodation available, basement for 2 girls. ऐसे करके ads दिया रहता है. The thing that will suit your need, आप उस नंबर पे कॉल करिए या फिर ईमेल करिए या फिर एड्रेस पे जाके विजिट करिए एंड बात करिए. Definitely you'll be getting a few more leads. Leads is the most important thing. आपके पास अगर ऑप्शन रहता है then you can avail as per your need and get the rent, right? तो मैं आपको leads generate करने का direction दे रहा हूँ. First is social media groups. Number 2 is college or university bulletin boards. Coming to the third and most popular option in our checklist is Kijiji. Simply Google पे search करिए kijiji.ca. It's one of the most popular website in Canada. नाम obviously सुने ही होंगे. Also मैं link description में डाल दूंगा because I know you're super lazy by default. तो link description में मिल जाएगा, check कर लेना. And do not expect me to show how to use it. मैं Kijiji का tutorial नहीं देने वाला हूँ unlike other YouTubers. It's really stupid. अगर आपको Facebook चलाना आता है तो Kijiji चलाना आपको आ ही जाएगा. Just log in करिए and search for your need. Basement in Scarborough, basement in Brampton, basement for 2 girls, rent near Seneca. ऐसे करके डालिए. रेडियस देना होता है कितने एरिया में आपको चाहिए. आपको लीड्स मिल जाएगा, एड्स मिल जाएगा. जस्ट अवेल इट. जो आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से लगे, जो आपका बजट में फिट होता है, जस्ट कॉल द ओनर, कॉल द जिसने एड पोस्ट किया है, जस्ट कॉल देम अप और विजिट द प्रॉपर्टी ऑफलाइन, talk to them, and by that way you can get your first house in Canada. So Kijiji is a very popular option and Kijiji से आपका definitely कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. If you still have problem, आपको अगर नहीं मिलता है then you should avail the other 2 options जो मैं वीडियो में अभी बताने वाला हूँ. The fourth option in our checklist is Facebook Marketplace. It's again one of the most popular options. Just आपको Facebook Marketplace में जाना है. फेसबुक में ही है फेसबुक मार्केट प्लेस. इफ यू डोंट नो, उधर आपको एक पोस्ट बनाना है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ. आई एम अनिकेत, आई एम कमिंग टू कैनेडा इन द ओंटारियो प्रोविंस इन दिस स्टेट. आई नीड अकोमोडेशन, शेयर्ड बेसमेंट, माई बजट इज दिस मच, आई एम नॉन वेज, आई वॉन्ट 2 other guys to stay with me. If there is any vacancy, do contact me in this number or do email me or just response here. तो ऐसे करके आपको एक पोस्ट बनाना है. आपको रेस्पॉन्सेज आएंगे बिकॉज पीपल आर ऑल्सो लुकिंग फॉर शेयर्ड पीपल, राइट? पीपल आर ऑल्सो हंग्री फॉर अकोमोडेशन. तो आपको रेस्पॉन्सेज आएगा एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन अवेल दोज लीड्स और ऑप्शंस दैट विल बी गेटिंग ऑन दैट पोस्ट इन फेसबुक मार्केट प्लेस. अगर ये भी नहीं होता है देन यू कैन जॉइन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स लाइक टोरंटो हाउसिंग, फिर ब्रैम्पटन रेंटल्स, सेनेका हाउसिंग. ऐसे करके बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बस रेंट्स का ऐड ही आता है एंड यू कैन अवेल दोज लीड्स एज वेल. Moving on to the final point of this video, of this checklist of finding accommodation in Canada, which is Google Maps. I know थोड़ा unconventional है, unconventional सुनने में लग रहा है, but it definitely works. आपको बस Google में सर्च करना है the region, the area or the province you want to take a rent in, and आपको देखना है, आपको लिखना है कि grocery stores in Brampton, grocery stores near Seneca College, whatever it is, grocery stores आपको सर्च करना है, या फिर Costco सर्च करिए या फिर Walmart सर्च करिए नियर योर एरिया जहाँ पे आपको रेंट लेना है, एंड आपको ग्रोसरी स्टोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा. एंड डेफिनेटली आपको ये श्योर हो जाना है कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ जहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स है वहाँ पे रेंट भी अवेलेबल होगा. बिकॉज स्टूडेंट्स नीड ग्रॉसरीज एंड लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स वैसे करके रेंट सेटअप करते हैं कि एवरीथिंग शुड बी हैंडी टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट? तो डेफिनेटली आपको रेंट मिलेगा. वहाँ पे जो प्लाजाज हैं उसमें आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगा. तो गूगल मैप कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू give you direction to the rental properties available near grocery stores, near good places, near your college, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम में मिल जाएगा, रेंट में मिल जाएगा, everything will be feasible, handy. आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बच जाएगा if you luckily get a rent near your college as well. So Google Maps can be a very good option. Okay, so let's talk about the things that one should keep in mind before paying their first rent or before moving to their new place in Canada in their initial days. पहले घर में जब आप जाओगे उसके पहले आपको क्या दिमाग में रखना है, एंड मेक दिस अ गोल्डन रूल मैं जो रिकमेंड करने वाला हूँ अभी, ठीक है? आपको प्रॉपर्टी ऑफलाइन विजिट करना है. डो नॉट रिलाई ऑन द ऑनलाइन पिक्चर्स Kijiji या फिर कोई भी वेबसाइट से अगर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहा है, डो नॉट रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली, बिकॉज डजेंट मैटर कि जैसा फैंसी पिक्चर वेबसाइट पे है वैसा ही घर होगा. देयर इज़ नो गारंटी अबाउट दैट बिकॉज लैंडलॉर्ड जनरली स्कैम करने के लिए वैसे पिक्चर्स देते हैं रेंट लेने के लिए. बट वंस द स्टूडेंट विजिट्स द प्रॉपर्टी फिजिकली, देखता है कि सारा कुछ डिफरेंट
इन्वेस्टमेंट है एंड दे डोंट गेट द रिफंड, राइट, बिकॉज उन्होंने वेबसाइट में देख के पे कर दिया है. सो डो नॉट फॉल इन टू दैट ट्रैप. मेरे फ्रेंड ने एक ब्रैम्पटन में रेंट लिया था, उसके साथ भी स्कैम हुआ था. अगर आपको जानना है, शी एक्चुअली सफर्ड अ लॉट. द लैंड, आई मीन आई वोंट बी रिवीलिंग इट. आपको लिंक दे रहा हूँ आई कार्ड में, आप देख लेना. एंड डेफिनेटली डो नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप. कीप दिस इन माइंड. आपको प्रॉपर्टी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह विजिट करना है. टॉक टू लैंड ओनर और लैंड लेडी. यूटिलिटीज़ कवर अप है या नहीं, आपको लीज़ कितने महीने का देना होगा, सेफ़ है या नहीं, नेबर्स कैसे हैं, लॉक अच्छा है या नहीं घर का, सारा कुछ डिटेल में देख लीजिए. एंड डो नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स कि मैं रेंट के बाद पूछ लूँगा. सारा कुछ रेंट के पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, देन पे योर फाइनल अमाउंट, बिकॉज मनी इज़ वेरी क्रूशियल इन कैनेडा. आपका फैमिली इंडिया में है, आपको सारा कुछ देखना है. बी मैच्योर्ड, थिंक वाइसली, डू विजिट द प्रॉपर्टी. दैट्स माई फर्स्ट रिकमेंडेशन. और भी बहुत सारी चीज़ है जो दिमाग में रखना है, बट इन दिस वीडियो द मेन मोटो इज़ टू गिव यू अ हाउस इन योर इनिशियल डेज एज सुन एज पॉसिबल. जो मैंने स्ट्रैटेजीज डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आपको घर तो मिल जाएगा. दिस वीडियो का वही मोटो था, मैंने कंप्लीट कर दिया है. बाकी जो फैक्टर्स दिमाग में रखना है वो मैं एक दूसरी वीडियो में कवर अप करूँगा. तब तक आप घर ले लीजिए. In 1 or 2 months you'll be matured enough, and when you'll be moving with your desired roommates to a new property, तब आप वो वीडियो मेरा चेक कर लीजिए जो मैं अपलोड करने वाला हूँ. हाउ टू डील विथ रूममेट्स एंड ऑल्सो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड when you're moving to a new place in Canada, right? इस वीडियो के लिए बस एक ही चीज़ ही काफ़ी है जो दिमाग में रखना है. विजिट द प्रॉपर्टी ऑफलाइन एंड टॉक टू द लैंड लेडी और लैंड ओनर, वट एवर इट इज़, लैंडलॉर्ड, ठीक है. एंड ऐसे वीडियोस आते रहते हैं चैनल पे, इसीलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अवेयर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा और हु हैज़ केम टू कनाडा. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, बिकॉज दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू अपलोड मोर कॉन्टेंट्स लाइक दिस. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. इट्स अनिकेत शाह signing off for the day. Bye bye.